शनिवार के भी। और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Pradeep ji, so Pakistan Zindabad slogans heard in the assembly in Karnataka. They were the guests of Nasir Hussain Saab. Nasir Hussain Saab is the Rajya Sabha MP from Karnataka, from the Congress. And the BJP MP, BJP MLAs accused Nasir Hussain's guests of shouting pro-Pakistan slogans in the Karnataka Assembly. Exactly. The Speaker of the Assembly and somebody from the Congress, of course, says, not the Speaker, the Congress, one of the Congress leaders says, they were shouting, Nasir Hussain Saab Zindabad, Nasir Saab Zindabad, Nasir Saab Zindabad. Now, how can you confuse the two? I don't know. Anyway. Both have already, they wanted an inquiry, they have got an inquiry. And probably let's see what this forensic thing reveals. Voice sampling. But I don't think anybody could get confused between Nasir Saab Zindabad and Pakistan Zindabad. But by the way, is shouting Pakistan Zindabad a crime in India? I don't think it's a registered crime. It's an enemy country, sir. I agree with you. So emotionally it is a crime, but legally is it a crime? I'm not sure. In any event, the Supreme Court has never ruled on it. But if in an assembly, in a congregation of elected representatives, they were guests of Nasir, oath loyalty to the state, but they were guests, swear by the flag. I agree with you, but they were not Congress MLAs who shouted the slogans. They were the guests of Nasir Hussain who did that. In any event, that's a new thing to beat the Congress with, and the Congress is already suffering in Himachal Pradesh. There is every possibility that the Congress government might actually fall. So Congress is falling like 9 pins everywhere. I mean, wherever you go, you find one more person has left the Congress. It's like an old Amitabh Bachchan ad, जो बोर्ड में जाते थे ना सर, इधर से पक करके एक होल निकल जाता, पानी आ जाता, फिर इधर कवर करो, दूसरे वहाँ से पानी अंदर आ जाता, और the board full of holes and the water popping up from one end the other. तो मतलब वो हालत दिख रहा है कांग्रेस। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो पहले हम और आप जो अटकलें लगा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस की 25 सीटें आए। If they don't get the acts together, I mean, एक ये भी हो सकता था। आप एक सिमिलरिटी देखो, they are sending DK Shivakumar everywhere. Yes. As an observer. So why don't you hand over the reins of the party to somebody like them, who can take care of any situation? Let us be very frank about it. He can take care of any situation. He's like their agent who solves all problems for them. He's a firefighter. Like Ahmed Patel used to. Yes. At one time. And if you're utilizing him, why don't you utilize him on the national level? I mean, it'll be great for the Congress. You require some very sensible and very hard-hitting persons like DK Shivakumar. I say, because Congress has been utilizing him everywhere. Any problem anywhere, MLAs को सबको साथ में लेके किसी इधर होटल में जाना है तो DK शिवकुमार, वहां से पार्सल करके दूसरे स्टेट में ले जाना तो DK शिवकुमार, तो आप उसको चार्ज दे दो। अगर चुनाव जीतना है तो DK शिवकुमार, जैसे फॉर एग्जांपल he was in charge of the election in Telangana. Yes. And they won in Telangana. That's what I'm saying. And Karnataka is a role model. Yes. वहां तो in fact they beat the BJP JDS candidate there. That's right. They couldn't do anything in Karnataka. I'm not just talking about the Rajya Sabha. I'm even talking about the assembly election. Yes. भाई दो जगह जहाँ पर बहुत जबरदस्त जीत हुई है कांग्रेस की, तेलंगाना और कर्नाटक में, वहाँ पे DK शिवकुमार साहब विराजमान थे, हर जगह पर थे। और आज उनको हिमाचल प्रदेश भेजे, like solve the problem there. आज उनको हिमाचल भेज दिया सब। तो wherever this crisis you're sending DK, then why don't you give him a total post along with a double portfolio? देके, he seems to be the strongest person in the Congress. At the moment with us, we have our old friend Lakshman Saoji Saab from the Bharatiya Janata Party. Lakshman Saoji Saab, namaskar. नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव सर। क्या लग रहा है? जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव। क्या लग रहे हैं सर? हाय देखो सर, लवली पिंक शर्ट एंड वो जो साफा पहना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जबरदस्त सर। इससे कुछ होता है? बिल्कुल होता है सर, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, आपके चेहरे पे ऐसे लग रहा है कि नीचे ट्यूबलाइट है और सीधा आपके चेहरे पे आ रही है, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो सर कर्नाटक असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे,
कोई उनके राज्यसभा के एमपी हैं, अभी अभी दोबारा जो इलेक्ट हुए हैं, नासिर साहब हैं कोई, उनके गेस्ट थे, कोई 20-25 गेस्ट उन्होंने बुला रखे थे वहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या हो रहा है सर? क्या पागल हो गए लोग? मतलब मेरी समझ के बाहर है। आपको ये समझ में आ नहीं, रहा है? हमारे सामने अभी भी कितनी चुनौतियां है उसका ये उदाहरण है। हम अमृत काल में स्वतंत्रता के बाद चल रहे हैं, हम शताब्दी की ओर जा रहे हैं, और अभी भी 75 साल में हम नेशनलिटी इनके दिमाग में पूरी तरह से परिणामकारक नहीं समझा पाए उनको हम। जी या हमको यह एक पार्टी की या दल की ये समस्या, हम भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, इसलिए कहेंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है कि जहां उनकी सरकार है वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जी तो ये कांग्रेस ने कैसा कारोबार किया इतने सालों में, ये किसका नतीजा है, ये किसकी देन है? ये There seems to be an audio problem There's with audio regard to Lakshman Saji Sahab. There is always a problem these days in something or the other. This something or the other, and I think we should have tested it earlier. I don't know what's happened. अमित शाह जिस प्रकार से कल उनका सब जगह मीडिया में चले कि जिस प्रकार बॉडी की सक्सेस इन 10 years, the year decade of transformation कहते हैं कि what all they have achieved and how strongly they believe, and he said that our entire aim is pro people, not populist. हम populist policies में नहीं believe करते, pro people एक एक चीज legislation और pro people जो भी schemes है उसको launch करने में विश्वास करते हैं। तो populist versus pro people, उन्होंने कहा कि we have differentiated what is populist and what is pro people, and we are only concerned about pro people approach where governance is concerned. I tell you what, you know, today there's this German girl, Cassandra May Pittman, yes. who met Mr. Modi, Bilkul. and she sings these bhajans so beautifully. Can we look at that, please? Let's take a look at that. Can we have that on, please? Can we have that on, please? Can we please have that on? That Cassandra May Pittman. Let's take a look at that. I think, I'm sure Mr. Lakshman Saji would also like to hear it. Can we have that on for just a little while, please? I have no idea where that has gone. I was told that it's very much there. I could hear it even before I came in. Is there a problem, gentlemen? हिंदुस्तान की राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Great opportunity to see you here. So you brought lotus? Yes. No, lotus is a symbol of my party. I must congratulate you the way in which you have taken care of her. Thank you. We feel proud. So tell us your experience. So we came on Sunday. There is Cassandra May Pittman, the blind girl from Germany who sings beautifully in Tamil and in Sanskrit. Let's go across to Lakshman Saji Sahab. Lakshman Saji Sahab, यस सर, आपने देखा कैसेंड्रा मे पिटमन जर्मनी से लड़की, उसको दिखता नहीं है, कृष्ण भजन गाती है, वो क्या खूबसूरत गाती है, तमिल में गाती है और संस्कृत में गाती है। मोदी जी को मिली आज, क्या बात है साहब, जबरदस्त। एक जहां पे पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है सनातन का, बाकी सबका, और हमारे यहाँ पे कर्नाटक असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार, कुछ तो समझाओ। बराबर है लक्ष्मण साहू जी साहब, मेरी समझ के बाहर है, शायद आपको समझ में आता होगा, बताइए साहब। ये इन्होंने जो गाया है जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है जी। और जब हमारे कांग्रेस के नेता
भारत जोड़ो बोल के यात्रा निकालते हैं, न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा निकालते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है इनको क्या करना है, इनको क्या चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। जी, ये बहुत चिंता की बात है। आज तक इन्होंने जो क्या किया है उसका नतीजा सामने दिख रहा है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये जब जब जितने पैमाने में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने नेशनलिटी के लिए जितने हमारी सरकार ने 10 साल प्रयास किए हैं, जहां पहले ऐसे काम होता था वहां नहीं हो रहा है, जहां कांग्रेस है वही वही ऐसा होता है। तो कांग्रेस के सब नेता लोग जो कांग्रेस छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, ये उसका ही एक कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अभी राष्ट्रीयत्व भूल चुकी है। सभी क्षेत्रों में, सभी फ्रंट पर, सभी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को निराशा आई है और निराशाजनक वातावरण में उनके पास से और ज्यादा गलतियां हो रही है। हम राजनीति में विरोधक समझ सकते हैं, विचारधारा विरोधी की वो भी समझ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोह होने तक ये विचारधारा जाएगी, ये हम कतई नहीं सह सकते हैं। और इसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर हमको इसकी सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। दुरुस्त बात, करेक्ट है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो माहौल बन गया है देश में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को या तो मानेगा या माफ करेगा। कोई नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, माफ तो करेगा ही नहीं। देश में इतना 370 के उपरांत जो वातावरण हो गया है, राम जन्मभूमि के बारे में, जो राम मंदिर के निर्माण के बाद जो वातावरण हुआ है, पूरे राष्ट्रीयत्व के जितने भी प्रोग्राम, G20 के बाद में जो वातावरण हुआ है, देश के बाहर जो हमारी इमेज सुधर गई है, उसका जो वातावरण बन गया है, देश आज बहुत आत्मनिर्भर होकर आगे की सब सोच रहे हैं। और अच्छे वातावरण में कांग्रेस को अभी अपना सब खत्म हो गया है, ये उनको मालूम हो रहा है, उसको उनका ज्यादा एहसास हो रहा है और वो निराशाजनक वातावरण में और गलतियां कर रहे हैं। किसी का भी स्टेटमेंट इसके ऊपर कांग्रेस के नेता का नहीं हो सकता क्या ये गलत है करके। वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आपने गलत सुना है। हाँ, वो कहते हो आपने गलत सुना है। वो कहते हैं वो बोल रहे थे क्या, नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर हुसैन अहमद साहब जिंदाबाद, नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद। ये राहुल गांधी जी के जी वायनाड के रैली में भी ये हुई थी घोषणा जी। ये क्या कांग्रेस की पहली घोषणा नहीं है कर्नाटक की? जी, वायनाड में भी यही वातावरण उन्होंने बनाया था। साहू जी साहब, मोदी जी का मंत्र है विकास भी और विरासत भी। जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन, नए भारत का नए कार्य संस्कृति, मोदी जी का कहना है। यह पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने द्वारका में दिखाया जिस प्रकार से सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करते हुए द्वारका में अंदर पानी के अंदर मोदी जी स्कूबा डाइविंग करके वहां पर पूजा पाठ करके कृष्ण मंदिर में और वापस ऊपर आए। मोदी जी का एजेंडा क्लियर है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हम लोग देख रहे हैं कि 80% हिंदुत्व को संभाल के रखा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका पॉलिसीज हर चीज, विकास भी विरासत भी। बट राहुल गांधी जी का कहना है कि 88% बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज 88% वो है और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए ले रहे हैं, उनको न्याय प्रदान करने के लिए। बोलिए। अभी बात आपने दोनों भी बातें बता दी है। हाँ, कि जो 10-10, 20-20, 30-30 साल शिलान्यास करके जो योजनाएं पूरी नहीं होती थी, ऐसी कई योजनाओं की लिस्ट हमारे पास है। और अभी जो इसके लिए जो पूरे लोगों में जो एक निराशा छा गई थी कि क्या यार कुछ नहीं होता है, कितना भी करो कोई आगे, तो ये आज 10 साल में जो सामने पिक्चर आया है, मोदी जी ने सही कहा, जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही कार्यकाल में होगा। तो ये एक जिम्मेदारी होती है, ये दायित्व हमारे पास क्या है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। वो हर एक प्रोग्राम में देखिए आप, रास्ते के काम हो गए, टनल के काम हो गए,
हेल्थ के काम होंगे। कल रेलवे का जो अभी परसों के दिन जो प्रोग्राम हो गए, जी तो 2000 रेलवे 15 प्रोजेक्ट्स, 1500 प्रोजेक्ट एक साथ में, 450 रेलगाड़ियां, अंडरपास, ओवरब्रिज, नई रेलगाड़ियां, स्टेशन का नूतनीकरण, ये जो प्रोग्राम हो गए, ये कितनी बड़ी मात्रा में हो गए। रेलवे का जो प्रवास था वो कितना पहले तकलीफ वाला था, अभी कैसा हो गया है, कितने बदलाव हो गए हैं। अभी हमको रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद हमको एयरपोर्ट पे जाने जैसा लगता है। जी ये जो हो गया ये सर, एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छा है सर एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छा है एयरपोर्ट से- आजकल एयरपोर्ट सर, आजकल एयरपोर्ट पे तकलीफ हो रही है बड़ी, मैं बता रहा हूं आपको। अरे नहीं, बाप रे बाप सर, एयरपोर्ट पे भीड़ हो गई अभी। ये बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। और वो भीड़ वहां हो पे गई, भीड़ हो गई। वो कन्वेयर बेल्ट नहीं चलती, कभी वो बेचारे पुलिस वाले पागल हो जाते हैं चेकिंग वेकिंग करके। सर अयोध्या का आप तो- खुद गए हैं वहां पे, आप मुझे बताइए, आपको अयोध्या का वो वाल्मीकि रेलवे स्टेशन देख करके वहां से जाकर के ज्यादा मजा आया कि एयरपोर्ट जाके ज्यादा मजा आया, ये बताओ, दिल की नहीं, बात नहीं, बताएं सर। बात ऐसा है, अयोध्या का एयरपोर्ट तो बहुत नया है। मैं रेलवे उधर स्टेशन की की- बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के अयोध्या के रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन की बात कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन तो एकदम बहुत बढ़िया बन गया, खूबसूरत, अरे बहुत- बहुत- अति सुंदर अति सुंदर, जी, बहुत व्यवस्था के लिए भी अच्छा, बिल्कुल। सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है उसके- ना, सबसे बड़ी बात क्या है लक्ष्मण साहू जी साहब, आप मेरे साथ इस पे एग्री करेंगे सर, देयर इज नो स्मेल। यस, वो बदबू नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, जो हर एक रेलवे स्टेशन में आती है ना, वो नहीं स्वच्छता आती है। टोटल स्वच्छता है सर। उस उधर के शौचालय जो हुए हैं उसका जी। कनेक्ट जो है जी वो पब्लिक को तकलीफ नहीं देता है। बिल्कुल और correct। पटरी पर भी जो पहले कोई भी कूड़ा कचरा फेंकते थे वो भी वो नहीं नहीं आके है, फेंकते नहीं हैं। है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये correct। ये भी बहुत हो गया। जी। जो ट्रेन जाती है, ट्रेनें भी साफ सुथरा रहती है। जी जी ट्रेन में जो प्रवास हो रहा है वो भी स्वच्छता वहाँ सर पहले दिखाई प्रधानमंत्री देती है। हैं, सर पहले प्रधानमंत्री हैं बेझिझक होके कि स्वच्छता अभियान मेरा सबसे बड़ा अभियान है भारत का। 2014-2015 की बात है, अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जाकर के बोला हर घर में मुझे टॉयलेट चाहिए, शौचालय चाहिए। सीधी बात है, अरे जब तक हर घर में शौचालय नहीं होगा भारत का विकास क्या होगा। जब हमारी बहनें जो हैं, हमारी माएँ जो हैं, वो सर घर से बाहर निकलने को डरती थीं। आपको मालूम है, खाना नहीं खाती थी सारा दिन, कहीं शौच करने ना जाना पड़े, ताकि बाहर ना जाना पड़े, रात के अंधेरे में जाती थी। लक्ष्मण साहू जी साहब सही नहीं, बराबर है ना। क्या इतना गहराई से पूरे लोगों के बारे में, सब समाज के बारे में, गरीब कल्याण के बारे में, जी जो दरिद्र रेखा के नीचे जो है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह सोचा है। सब तरीके से सोचा है, जीवन से, शिक्षा से, हेल्थ से, आगे दवाइयों से, जी सभी तरीके से सोचा गया है सबका। दुरुस्त बात है सर। सही मायने में सिर्फ सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन नहीं रही, जी ये हमारी जीवनी हो गई है। जी साहू जी जब साहब, हाँ बोलिए सर। गांवों में परिवर्तन हो गया, बिजली के बारे में होने दो, गैस के बारे में होने दो, शिक्षा के बारे में होने दो, लड़कियों का शिक्षण, महिलाओं का आगे का जीवन, शादी होने के बाद उनका जीवन, शादी से पहले उनका जीवन, प्रेगनेंसी के बाद उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके बारे में, फिर हेल्थ के सेंटर होने दो, दवाइयाँ होने दो, नहीं तो और कोई स्कीम, सब तो ये सबके बारे में सोचा गया। इससे पहले सरकारी काम ये सिर्फ बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े अखबार के न्यूज, टेलीविजन चैनल्स के पूरे न्यूज और एक निराशाजनक स्थिति, जी ऐसा ही सरकार का एक चेहरा था। ये पूरे पिछले 10 साल में ये सब पूरा बदल गया है। जी सरकार लोगों को अपनी सरकार लगने लगी है। विरोधी दल वाले गिने चुने कुछ भी कहते होंगे, लेकिन आम पब्लिक आज मोदी जी के साथ खड़ी है। जी और आज तो तमिलनाडु में पलड़म में जो उन्होंने इतनी जबरदस्त रैली हुई, वहां पर मोदी जी इमोशनल हो गए बड़े।
भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बराबर। भाई मैं माफी चाहता हूं, मुझे तमिल नहीं आती है और मुझे मालूम है कि मेरी भाषा आपको नहीं आती है, इसके बावजूद आप लोग मुझे सुनने आए। जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। बराबर, कितनी दिल को छूने वाली बात हो गई ना जी क्योंकि ये मान्य करना, ये कितनी बड़ी सोच है जी कि इतनी हमारी भाषाओं की जो विविधता है भारत की, उसके बावजूद हम भारत एक है जी और एकात्मता है और राष्ट्रीयत्व उनके दिल में है सब लोगों के। ये बहुत बड़ी बात है। करेक्ट प्रदीप जी। साहू जी साहब, कल अमित शाह जी ने एकदम खुलकर बोला, सीमा पर हमला और सेना पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, बोले घर में घुस के मारेंगे। ये 10 साल में हमने पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया, हम पीछे नहीं रह जाएंगे। और आगे जाके बोला आर्टिकल 370 उसका एब्रोगेशन हमने पूरे फत्तरबाजों को खत्म कर दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया। स्कूल खुल गए, थिएटर जो 30 साल से बंद था वो 30 साल से थिएटर खुल गए, मुहर्रम का जुलूस निकलने लगा। ये डेमोक्रेसी हमने कश्मीर में एस्टैब्लिश किया। तो एकदम स्पष्ट रूप से राष्ट्र सुरक्षा के बाद, राष्ट्रवाद के बाद मोदी जी के काल में क्या क्या हुआ वो अमित शाह सुना दिए। आपको कैसे लगा जो जबरदस्त तरीके से अमित शाह ने बोला है? ऐसा, एक तो सेना के बल का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थे उनके तरफ ध्यान देना चाहिए था, उनका सम्मान होना चाहिए था, उनको बहुत आदर भाव अभी मिलने लगा है। जी सरकार उनके बारे में सोच नहीं थी, चाहे उनके कोई इक्विपमेंट होने दो, कोई इंस्ट्रूमेंट होने दो, युद्ध की सामग्री होने दो, बॉडी पर का वेयर होने दो उनके, या शूज होने दो, या वेपन्स होने दो, इनके सबके बारे में सोचा गया और उनका सम्मान किया गया। उनके बारे में आम पब्लिक के दिल में एक जगह हो गई। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, पहले दूरियां बहुत थी, दोनों में अंतर बहुत था। तो अभी सुरक्षा के बारे में जितनी ये सरकार जागरूक है, जितना बजट बनाया है, जितना ध्यान दिया गया है, और सबसे ज्यादा जो उनके शौर्य का प्रकटन करने के लिए उनको जो अनुमति दी गई है, इससे पहले उनको शस्त्र दिया था लेकिन हाथ बांध के रखे थे, उनको दिल्ली फोन करना पड़ता था, उनको परमिशन मांगना पड़ता था शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए। नहीं, फायरिंग करें या ना करें। हाँ, तो फायरिंग के लिए अभी उनको पूछने को जाना नहीं पड़ता है, नहीं जाना पड़ता। करेक्ट, ये उनका सबसे पहले शौर्य का सम्मान है जी। इसलिए शत्रु भी अभी नरम पड़ गया है। अभी हमको कांग्रेस जैसे अंदरूनी शत्रु के साथ ज्यादा लड़ना पड़ता है। देश के शत्रु बाहर की अभी हिम्मत नहीं होती है हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की। ये मुझे जरा अपने दर्शकों के लिए ये जरा सूचना देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। जो अभी अभी लक्ष्मण साहू जी साहब ने कहा, शायद आप लोग मिस कर गए, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा जो बॉडी आर्मर यानी बुलेट प्रूफ वेस्ट, केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट जो थी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त ऑर्डर की गई थी, आई नो दिस पर्सनली, 2003 की बात है, 1.5 लाख केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट आर्मी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ऑर्डर की गई थी। सर 2014 तक नहीं आई, 2014 तक नहीं आई सर, नहीं आई सर। बिचौलियों को पैसे दे दिया गया था नहीं सर। 2004 से लेके 2014 तक जो आर्म्स डीलर्स थे उन्होंने अपने पैसे कमा लिए, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं आई। मोदी जी के आने के बाद आनी शुरू हुई और अभी आई थिंक वी हैव रिसीव्ड अबाउट 1,10,000 और सो, और बाकी 1 लाख भी आ जाएंगी, पूरी 2 लाख आ जाएंगी अभी। सर जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, AK एंटनी साहब जो हमारे रक्षा मंत्री थे, ही डिड नॉट साइन अ सिंगल फाइल। पूरे अपने रक्षा मंत्री पद के कार्यकाल में एक फाइल उन्होंने साइन नहीं करी सर। लक्ष्मण साहू जी साहब, ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये? नहीं, ऐसा है, हमने जब श्वेत पत्रिका निकाली तो बहुत बुरा लगा इन लोगों को जी। ये जो फर्क आया है
2004 से लेकर 14 तक का भारत और 2014 से 2024 तक का भारत, जी, ये जो फर्क जो है ये सब अभी लोगों को मालूम हो गया है। ये सभी क्षेत्रों में हम कितने पीछे थे, हमारी मानसिकता क्या थी, सभी क्षेत्रों में। जी, ये तो आपने सुरक्षा के बारे में, हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुई थी पूरी तरह से। अभी देखो बात में बात निकल जाती है, हम 4 से 14 की बात करें, बोफोर्स का मामला कैसे आया था, जी, क्या हम भूल नहीं सकते? वो किसमें दलाली लेनी चाहिए, किसमें देनी चाहिए, इसकी कोई सूझबूझ नहीं थी कांग्रेस को। जी, पंतप्रधान इंदिरा जी के जाने के बाद जो मिस्टर क्लीन बोल के राजीव गांधी जी आए थे 84-85 में, जी, 2 साल के बाद 2.5 साल में बोफोर्स का मामला सामने आया था। जी, क्या कांग्रेस वालों ने कभी देश के साथ अच्छा व्यवहार किया है? मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे जैसे हम जितने जितने मामले में दखल देंगे, जितनी चर्चा करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उसमें हमको बोलने में भी शर्म आती है। इतने सब मामले हैं हर एक जगह पे। जी, देश के बारे में सोचा नहीं गया सत्ता इतने साल मिलने के बाद। और क्या होता है कि नए नए समस्याएं हमारे सामने आने लगी है, नए पीढ़ी के सामने नई नई समस्याएं आने रही है। जो हमारा मूलतः सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो प्रामाणिकता है, इसको नजरअंदाज करके हमारी एक अलग सी इमेज दुनिया में भारत की हो गई थी। और अभी हमको फिर विरासत पर गर्व लाने के लिए फिर हमको इतिहास को दोहराना पड़ेगा, फिर हमको उसकी स्टडी करना पड़ेगा, नई पीढ़ी के सामने आदर्श निर्माण करने पड़ेंगे। क्योंकि जो इतना सब होने के बाद भी जो जो समस्याएं सामने आती है, वो समस्याओं का हल करने के लिए एक मजबूत युवा पीढ़ी, एक नेशनल युवा पीढ़ी, एक भारतीयत्व जिसके खून में भरा हुआ है सही मात्रा में, ये जनरेशन के लिए हमको और कांग्रेस जैसे कुछ चुनौतियों का सामना करना अभी भी पड़ेगा। लक्ष्मण साहू जी साहब, वो आप भीड़ देख रहे हैं तमिलनाडु में? वो तमिलनाडु की फुटेज है, आज की है ये साहब। ये पहली बार देखी मैंने। जो कर्नाटक के लोगों का उदाहरण सामने देकर दक्षिण भारत में जो बीजेपी बढ़ रही है, जो बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, बीजेपी में नेता लोग आ रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 5 साल पूरा काम किया है, उसका नतीजा ये तमिलनाडु की भीड़ है। तो ये मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी का करिश्मा है, उनके ऊपर जो विश्वास जताया है उधर के लोगों ने, और कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं, ये एक विश्वास निर्माण हो गया नई पीढ़ी का। तो लक्ष्मण साहू साहब, बाकी सब पार्टियों को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? अगर देखिए कितना सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी को, अब बाकी सब लोग जो आ रहे हैं, जैसे अशोक चौहान जी आ गए, क्या नाम है उनका, मिलिंद देवरा जी आ गए इस तरफ से, हिमाचल से वो 3 लोग इस तरफ आ गए, तो मतलब वो करने की जरूरत क्या पड़ रही है सर? नहीं साहब, देखो ये इसके बारे में हमको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों कर रहे हैं जी। एक तो बात ऐसी है कि जो नेताओं ने गलत लोगों के साथ राजनीति करने का इतने दिन मन बनाया था, उनको समझ में आया कि यह गलत है। अगर वो राष्ट्रीय सेवा में, समाज में, राजनीति में, राज्य में, राष्ट्र में कुछ करने की उनकी मानसिकता है, और वो मंच पर पिछले 30-40 साल जाकर भी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी का नेतृत्व उनका कुछ भी नहीं कर सकता, ये पूरा विश्वास होने के बाद अभी देश के लिए जो कोई कर रहे हैं उनके साथ जाना जरूरी है, उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा जब उनका मन कहता है तब ये कृतियां होती है। हमने विचारधारा में हमने कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मूवमेंट नहीं चलाया है। हमने विचारधारा के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जो भारतीयत्व के साथ जो खिलवाड़ करेगा, राष्ट्रद्रोह जो करेगा, उसको पहले हमने विरोधक माना है। तो ये सोचना पड़ेगा। अभी ये जो नेता लोग आ रहे हैं, देशद्रोह जिसके दिमाग में है उसको हम नहीं अपनाएंगे, बाकी बातें चलती रहेगी राजनीति में, लेकिन देशद्रोह के सामने वो लोग रुक नहीं रही है, ये सबसे बड़ी बात है। उनका आने का स्वागत करने में मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है कि कम से कम सामने देशद्रोह चल रहा है, ये उनको अभी मंजूर है,
इसलिए वो आ रहे हैं, ऐसा मैं मानूंगा। सावजी साहब, बीजेपी का कहना है, अमित शाह जी का कहना है कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहता है, देश को बांटना चाहता है। कभी नॉर्थ साउथ का डिवाइड करते, बोले कि नॉर्थ बीजेपी का है, साउथ में बीजेपी है ही नहीं, नॉर्थ साउथ का। कभी किसान का आंदोलन कहीं, और प्रियंका गांधी का कहना है कि किसान का आंदोलन है बिकॉज सरकार का झूठा वादा, जो वादे झूठे थे इसलिए किसान सड़क पर आए हैं। और प्रियंका गांधी का कहना कि हर सेगमेंट में, हर आप सेगमेंट में देखोगे सब लोग परेशान हैं, सबके खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसान, महिला, युवा, श्रमिक सब त्रसित है, अन्याय का सहन कर रहे हैं, और हम एक जोड़ो यात्रा के माध्यम से सबको न्याय पहुंचाएंगे। तो क्या प्रियंका गांधी का कहना ठीक है जहां तक, या मोदी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहता है? नहीं प्रदीप जी, आपने बहुत राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट किया है। वो बांटना नहीं चाहते, वो बिकना चाहते हैं भारत को। बांटने की बात तो हमारे लोग कभी होने नहीं देंगे, लेकिन वो बिकने की साजिश रच रहे हैं, ये ज्यादा गंभीर है जी। उन्होंने जितने जितने कांग्रेस ने बिल पास किए, जितने जितने सब कारनामे किए हैं, वो सब स्टडी करने के बाद हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, भारतीय जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारतीय की जो अस्मिता है, ये सब कुचलने के लिए एक भी कसर छोड़ी नहीं है कांग्रेस ने। और राहुल गांधी उसका प्रतीक है। राहुल गांधी देश बांटने की नहीं सोच रहा है, राहुल गांधी देश बिकने का सोच रहा है, और हमारे लिए ज्यादा गंभीर है। लोगों ने उनकी चालें सब समझ ली है, और आने वाले चुनाव में अपने को वो भी, अभी अगर कहीं पे कांग्रेस आई होगी तो उधर का स्थानिक नेतृत्व उनके आपस के झगड़े में कहीं ना कहीं तो यशस्वी हुआ होगा। राहुल गांधी की वजह से कोई एमएलए हुआ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, या राहुल गांधी से वजह से कोई सांसद भी नहीं होगा। तो सर आप ये बताएं, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कब तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी? क्या इस हफ्ते बन जाएगी सर, क्या अगले हफ्ते तक जाएगा मसला? ऐसा है, अभी जो माहौल है पूरा जी, जो भाजपा के लिए बना है जी, और ये बहुत मेहनत के बाद बना है। ये सिर्फ राजनीति करने से लोग साथ में नहीं आते सर। जो हमारे मोदी जी ने, मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो जो मंत्री है, जो जो सरकार चलती है, जो जो जनता के लिए किया है, इसका जो एक माहौल बन गया है, हमारी भारत की अस्मिता को जगाया है सब जगह। तो इसका नतीजा बोलकर लोग जो हमारे साथ इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, अभी आपने जो तमिलनाडु का पिक्चर दिखाया साहब जी, हमको कितनी खुशी होती होगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते जी, लगा सकता आपके लिए वो न्यूज होगी सर, लगा आपके लिए न्यूज होगी, हमारे लिए वो बहुत कड़ी मेहनत का हमारा वो नतीजा है। सर लगा सकता हूँ मैं प्रदीप जी और मैं लगा सकते हैं सर। आपकी खुशी का क्या अंदाजा है हमें मालूम है सर। यस सर। ये आप मत भूलिए सर, हम लोगों की बैकग्राउंड क्या है आप मत भूलिए। दूसरी चीज, चलते चलते ये भी बता दें तो 370 पार है इस बार। बात ऐसी है, देखो स्लोगन के लिए हम एनडीए है, साथ में है, और हम एनडीए को लेकर जब बात करते हैं तो आपकी बार 400 पार है। आपकी बात मैंने 400 के नीचे आंकड़ा कभी बोला नहीं पिछले आज तक कभी नहीं बोला जी, नहीं। लेकिन बीजेपी के 370 आने चाहिए ऐसा मोदी जी का कहना है, क्योंकि धारा 370 मोदी जी ने हटाई, तो लिहाजा 370 सीटें तो आनी चाहिए। मतलब हक बनता है, देश से हक बनता है। नहीं 370 हटाए, इसके लिए 370 का आंकड़ा ये सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं होगा। उतना विश्वास संपादन किया है, उतनी पब्लिक साथ में है, ये उतनी जनता हमको चाहती है, और आगे जाकर भारत की जो राजनीति होने वाली है जी, आगे जाकर भारत की जो सरकार चलने वाली है, आगे जाकर हमको जो एक दुनिया के सामने हमारा चित्र और भी उज्जवल करना है, और आने वाली पीढ़ी के सामने समस्याओं का ढेर जो पहले हमारे सामने वो आने वाली पीढ़ियों के सामने को देना नहीं है। तो एक सामर्थ्यशाली भारत, एक आत्मविश्वासपूर्ण व आत्मनिर्भर भारत, ये जब हमको करना है, इसलिए हम चुनाव में सामने जा रहे हैं, और इसके लिए हमको लोग भी साथ दे रहे हैं। चलिए लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, आपको मालूम ही है ऐसी बात तो नहीं आप अयोध्या में हो सावजी साहब, या
नहीं वापस आ नहीं गए अभी मैं नासिक में हूँ वापस आ गए सर, वो बैकग्राउंड दिख रही है ना, बैकग्राउंड जो है वो सर का या ऑफिस है या घर है, दोनों में से एक चीज है। वो ऑफिस जबरदस्त। ऑफिस में हो, ऑफिस। भाजपा का ऑफिस ही। जी जी, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वो, जबरदस्त। Yes, वो पीछे शायद छत्रपति शिवाजी महाराज है, मैं जहाँ तक जी हाँ, जानता जी हूँ, हाँ। हाँ, जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की हम तस्वीर है। हमारे श्वास है वो। जी बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बैठे हुए लक्ष्मण Yes, साहनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप मुंबई आए, आप जरूर हमारे दफ्तर बिल्कुल। आए, आपका ही दफ्तर है, प्लीज आइए। जय बिल्कुल सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर जय महादेव, हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय हिंद। आइए सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Great pleasure talking to you as always. Thank you. Well, he is a very happy man, and he's very happy at what he saw in Tamil Nadu. You know, I am also very happy after I saw Cassandra Spitman singing those bhajans in And Tamil. so beautifully sung. There was And- not even an ounce of any. Not kind even of- the trace of an accent. Yes. She was singing in Tamil and then she sang in Sanskrit also. Really beautiful. Achutam Keshwan जो उन्होंने गाया पहले, वो भी आप लोग YouTube पर सुन सकते हैं. It is so beautiful. That's her mother, by the way. That lady with her, उनकी माता जी हैं. तो बचपन से ही ये कहा जाता है कि कैसांड्रा में स्पिटमन को श्री कृष्ण के सपने आया करते थे, और वहीं से शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड इन द सेंस शी कांट सी, सो शी इज़ अमेजिंग, ग्रेट स्टोरी.